So our postgraduate resident, Dr. Saba, will describe the history of a case that presented with the lower limb weakness and further with progression of disease. So over to. Meerab, 8 years old female, resident of Shekhupura, admitted on 14 days back through emergency. Historian is sister. She is a referred case from secondary care hospital from Shekhupura. She is presented now unable to bear weight from 4 days. Child was in usual state of health 4 days back. Then she developed lower limb weakness which was sudden in onset, symmetrical, ascending in pattern, started from lower limbs, then involving upper limbs and breathing difficulty. She cannot walk, she cannot sit, no urine, but associated with dysphagia and numbness. There is no association of urinary retention, palpitation, vision problem, speech problem, fits, altered state of consciousness, muscle pain, trauma to back, joint pain, neck swelling. No history of polio case in community, no history of intramuscular injection in gluteal region, no history of weight loss, prolonged fever, or TB contact in family, no history of travel in hilly areas. This weakness is not associated with diurnal variation, no backache, no loss of neck holding. With these complaints, she was admitted to a secondary care hospital in Shekhupura, where some injectables were given and some blood test and stool test was performed. She has been reported as a case of AFP with local team in Shekhupura, and then referred to tertiary care hospital for further management. During this hospital stay in tertiary care hospital, some blood test and CSF test was performed. IV fluids and IV medications were given, but the historian is not aware about the medication. NG feed was given. No special test or investigation and treatment was done during this stay. The historian is concerned about the weakness, but progression is stopped. No plan of discharge till now. The previous hospitalization is significant for above mentioned complaints in secondary care hospital in Shekhupura. This child cannot walk, so she cannot go to toilet and is wearing diaper. She can eat by herself and can dress by herself. No monitoring and screening was performed till now. The birth history, immunization history, and family history not significant. She is the product of non-consanguineous marriage and having 7 siblings with last in order. Diet is appropriate with as she is taking family foods. Socioeconomic history is poor, as father is the shopkeeper and all the siblings are school going. There is severe impact of disease on siblings and parents. The historian has fair knowledge about the disease and the treatment, and has concerns about the treatment and prognosis of the disease. Okay. Can you summarize your case? Yes. Meerab, 8-year-old female, presented with lower limb weakness, and which was associated with dysphagia, numbness, but no association with altered state of consciousness, fits, and joint pain, trauma, and some bladder or bowel involvement. And treated with IV injection and IV medications, and some blood test and CSF analysis was performed. ओके सो हमने इस केस में जस्ट हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है, सो हम हिस्ट्री ले रहे हैं, उसी को एग्जामिनेशन को हमने डिस्क्राइब नहीं किया, सो हमारा फोकस हिस्ट्री पे है.
स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने बताया कि आपकी जो प्रेजेंट कंप्लेंट होती है हिस्ट्री की जान होती हैं, क्योंकि सारा डायग्नोसिस हमारा प्रेजेंट कंप्लेंट में बनता है। अब आपने इसमें प्रेजेंट कंप्लेंट रखी है अनएबल टू बियर वेट फ्रॉम द 4 days, और जब आपने इसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट की है तो आपने स्टार्ट में बता दिया है कि पेशेंट की वीकनेस थी, सिमेट्रिकल थी, असेंडिंग थी और डिस्फेजिया हो गया, सारा कुछ हो गया। अब हमें इसमें कुछ समझ नहीं आई कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या थी। क्या आपका बच्चा आपके पास सिर्फ वीकनेस के साथ आया था या ड्यूरिंग द स्टे उसकी चीज़ें ये वर्स हुई, किस तरह वर्स हुई? सो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो आपने सिर्फ रखी है अनएबल टू बियर वेट फ्रॉम द 4 days, लेकिन जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन स्टार्ट की है आपने सारा कुछ बता दिया कि पेशेंट इज वीकनेस, और साथ में आपने बता दिया उसको डिस्फेजिया भी है, उसके अपर लिम्ब इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये कैसे है? तो इसको आपने कोई एलेबरेट नहीं किया, तो इसकी एलेबरेशन क्या है? क्योंकि फिर आपने जब मजीद बताया तो आपने बताया कि जब वो इस हॉस्पिटल में आने से पहले, टर्शियरी केयर में आने से पहले, जब वो DH शेखुपुरा में रही है तो वहाँ पे उसको डिस्फेजिया भी हो गया था, सारा कुछ हो गया था। तो इसमें कुछ इवेंट की समझ नहीं आई, सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। सो इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही। सो इसको आप रिवाइज करना चाहेंगी या एक्सप्लेन करना चाहेंगी, क्योंकि इससे चीज़ें समझ नहीं आ रही। सो क्या था एक्चुअली ये? सर ऐसा था कि जो हिस्टोरियन बताती हैं कि ये रात को बिल्कुल ठीक सोई थी। वो स्टार्ट हो गया। हाँ। अब आपके जो इवेंट्स हैं, जब आप बच्ची आपके पास आई है हाँ जी। तो आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वहाँ स्टार्ट करनी है। जी। ये नहीं स्टार्ट करनी कि उसको शुरू में तो डेफिनेटली उसको वीकनेस होगी। जब बच्ची आपने देखी है तो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो है उसकी। सपोज अगर आपने बच्ची आज देखी है तो आपके मुताबिक तो कंप्लेंट वो उसकी प्रेजेंटिंग वो होगी कि पेशेंट जो है, जब डेफिनेटली बच्चा शेखुपुरा में कितने दिन रहा था? ये 1 दिन के लिए। 1 दिन रहा है। और इधर जो इस हॉस्पिटल में आप टर्शियरी केयर में कितने दिन रहा है ये अभी तक? 13 डेज। 13, तो 14 डेज की इलनेस है। तो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपकी ये 14 डेज की होगी, ठीक है? तो उसमें उसकी जो वीकनेस कितने दिन से हुई, मतलब उसमें आप बताएंगे कि पेशेंट इज अनएबल टू वॉक, ठीक है, कितने दिन से था। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कंप्लेंट क्या हुई, तो आपने सारी कंप्लेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ बताना है कि उसको डिस्फेजिया था, उसको जो है वो नेक्स्ट सिम्टम्स वो स्टार्ट हो गया, तो आपने सारी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे बताना है, क्योंकि आपने फिर चीज़ें आगे मिक्स कर दी हैं। सो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का मतलब है कि अभी आपके पास जो पेशेंट जिस कंडीशन में है वो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, तो उसके अंदर आपकी अपर लिम्ब वीकनेस भी आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में है और आपका डिस्फेजिया भी अपर जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अंदर है। सो फर्स्ट आपने जो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ये थी इनको बहुत डिटेल में बताना है। जो आपके नोज हैं, सारे नोज हैं, इसमें आपने इसके डिफरेंशियल्स को रूल आउट किया है, वो सेकंड पे आएंगे। सो आपने बताना है कि डिस्फेजिया सॉलिड को है, लिक्विड को है, कुछ आपने उसकी डिटेल नहीं बताई, ठीक है? तो उसको उस टाइम क्या होता था, उसको सॉलिड से था, लिक्विड से था, उसकी सिवियरिटी क्या थी, वो चीज़ आपने डिटेल बतानी है। वीकनेस आपने बता दी, अच्छा है कि आपकी सिमेट्रिकल थी, असेंडिंग थी, पहले लोअर लिम्ब फिर अपर लिम्ब, तो इसकी समझ आ गई आपकी। फिर आपने डिस्फेजिया को बहुत डिटेल में बताना है कि लिक्विड को है, सॉलिड क्या है और उसकी सिवियरिटी क्या है, और ये आपके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है? जी। अच्छा, आपने फिर इसके अंदर जो है, जो आप पेशेंट की सिवियरिटी जब बताई, जब आपको लगा कि जनाब सारी चीज़ें बता दी, तो जब आप पेशेंट की लेवल ऑफ बताते हैं कॉम्प्लिकेशंस को कंसिडरिंग, आपकी जब आपने सारी चीज़ें रूल आउट कर ली, आपने उसके टीएम के फाइंडिंग, आपने ट्रामेटिक जो है स्पाइनल इंजरी, टीबी, सारा कुछ निकाल लिया, जब आपका एक चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है यहाँ पे, वो जीबीएस प्रोमिनेंट हो रहा है, जो हिस्ट्री आपने बताई उसके मुताबिक, तो फिर आपने उसकी चीज़ों को निकालना है। अब आपने उसके ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी का क्वेश्चन क्या पूछे, वो मुझे इसमें नहीं नज़र आए। तो ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी के बारे में पूछना था बच्चे को, कहीं उसको पैल्पिटेशन तो नहीं हो रही, उसकी धड़कन दिल की तेज़ तो महसूस नहीं होती, उसको स्वेटिंग तो नहीं होती, ठीक है? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, फ्लशिंग, स्वेटिंग और चक्कर आना, ये सारी चीज़ें आपकी हैं, तो ये आपने ज़रूर पूछने हैं, ठीक है? तो ये आपने इसमें हिस्ट्री में नहीं बताया, मे भी आपने पूछे हो, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं आया, तो जो डिस्क्राइब आप बताते हैं वही हिस्ट्री होती है। सो आपने ये चीज़ें, बॉडी पेन्स का नहीं बताया कुछ, थे पेन से नहीं थे इसको, क्योंकि जो है न्यूरोलॉजी है, जो न्यूरोलॉजिकल पेन्स जो होते हैं, न्यूरोपैथिक पेन्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर होता है न्यूरोपैथी का, तो उसको आपने ज़रूर बताना है। थे कि नहीं थे बच्चे के अंदर, आपके इस पेशेंट के अंदर थे न्यूरोपैथिक पेन है, तो उसको ज़रूर बताना है, क्योंकि डेफिनेटली आपने जीबीएस की सारी चीज़ों को आपने कवर करना है। अब ड्यूरिंग स्टे उसकी सिवियरिटी मैक्सिमम क्या थी, डिजीज़ की मैक्सिमम सिवियरिटी क्या थी? वो स्वॉलो नहीं कर पा रही थी। वीकनेस कितनी हो गई थी उसकी, अ, मतलब बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी बच्ची, जी। अपर लोअर लिम्ब, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, और स्वॉलिंग डिफिकल्टी थी उसको, जी। ठीक है, और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट थी कि नहीं उसकी? थी, नहीं। रेस्पिरेटरी की बात, तो ये चीज़ें आपकी ना बड़ी प्रोमिनेंट होनी चाहिए हिस्ट्री के अंदर। नोज तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट होनी चाहिए हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक आप प्रोमिनेंट होकर अच्छा बताएं ताकि एग्जामिनर के माइंड पे फौरन इसका इम्पैक्ट पड़े, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। अब आपने बताया कि पेशेंट जो है आपका एनजी फीड के ऊपर है, ठीक है? एनजी फीड पे पेशेंट आपका, ये कब से एनजी फीड पे? एनजी फीड दी गई थी, लेकिन अभी तो नहीं, अभी नहीं एनजी फीड के अभी swallow ऊपर। कर- और आपने बताया कि एनजी फीड पे बच्चा है, और फिर अब जब आप डाइटरी से बताओगे तो आपने बताया कि पेशेंट जो है एनजी फीड पे और फैमिली डाइट ले रहा है,
तो इसका क्या मतलब था, फैमिली डाइट ले रहा है। एनजी फीड पे फैमिली डाइट तो नहीं लेगा ना, उसमें तो डेफिनेटली पेशेंट एनजी ऐसी डाइट लेगा जो एनजी से गुजर सके, तो वो टाइम को इस तरह की होगी, ब्लेंडेड डाइट होगी या फिर लिक्विड्स होंगे डेफिनेटली। तो वो आपने डाइट बतानी है और उसकी कैलोरीज भी कोशिश करें निकालें आप, उसकी ईजिली निकल सकती हैं, ठीक है। अब आपने इसके अंदर बताया कि पेशेंट की बर्थ हिस्ट्री फलां थी, फैमिली हिस्ट्री फलां है, नॉन कंसैंग्यूइनस है, तो इसकी कोई रेलेवेंस क्या है इस केस के अंदर, कोई रेलेवेंस है? तो इसको आप ज़रूर हिस्ट्री के अंदर पूछ लें आप, ठीक है, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन के दौरान इन चीज़ों को ओमिट कर लें आप, ठीक है, पूछ लें आप, लेकिन आगे डिस्क्रिप्शन में इसके बताने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं है। फिर आपने वर्ड यूज़ किया कोई स्पेशल टेस्ट नहीं हुए, आपने बताया एक तरफ बताया आपने कि उसके जो है ना ब्लड टेस्ट भी हुआ है, स्टूल टेस्ट भी हुआ है, CSF भी हुआ है, फिर आप कह रहे हैं स्पेशल टेस्ट नहीं हुए। स्पेशल टेस्ट का क्या मतलब है आपका? न्यूरो इमेजिंग, MRI, CT। तो उसको आप स्पेशल टेस्ट में ना बताओ, आपके जो टेस्ट हुए हैं वो बताएं आप। तो स्पेशल टेस्ट को आप बायस्ड होके अगेन जा रहे हैं, तो उसका नहीं है। आपने बताया कि डिस्चार्ज प्लान का क्यों आपने पूछा ऐसे, और डिस्चार्ज प्लान की क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? कि एक तो लॉन्गेस्ट हॉस्पिटल स्टे, ठीक है, और दूसरा जो है वो डिजीज़ का इम्पैक्ट। और उसमें डिस्चार्ज प्लान की क्या सिग्निफिकेंस आ जाएगी? डिजीज़ तो आपकी स्टैटिक हो गई है जी, चलें, उसके भी बहुत ज़्यादा लॉजिक यहाँ पे बनती नहीं है। दूसरा, अब जो है हिस्ट्री बताते हुए कोशिश क्या करें कि एग्जामिनर की तरफ आई कांटेक्ट करें, ठीक है। आप डेफिनेटली आप सारी हिस्ट्री आपको याद नहीं होती, लेकिन आप डेफिनेटली एग्जामिनर को काफ़ी टाइम उसको आई कांटेक्ट दें, दरम्यान में आप वहाँ से पढ़ें, फिर आई कांटेक्ट दें, उसकी आंखों में देखें, और पेशेंट की तरफ कभी नहीं देखना आपने, ठीक है। सो आई कांटेक्ट आप बिल्कुल नहीं दे रही थी, आप जस्ट पढ़ी जा रही थी, तो आप आई कांटेक्ट एग्जामिनर को दें, और दरम्यान में आप एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के देखें, तो उससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, आप कॉन्फिडेंट शो होते हो, आप मेच्योर कैंडिडेट शो होते हो, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, अब जो समरी है ना, उस पर आपको बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। समरी आपकी बड़ी ब्रीफ होनी चाहिए। सो अगेन इसमें समराइज में फिर आपने वो चीज़ें नो आपके आना शुरू हो गए हैं, तो पर्टिनेंट पॉजिटिव फाइंडिंग आप बताएं, ठीक है। तो उससे आप शुरू करें कि माई पेशेंट 80 कितनी एज थी इसकी, 10 ईयर्स, 8 years। सो माई पेशेंट 10 years old female child had presented with the difficulty in walking, and later on she developed weakness of the upper limbs as well as difficulty in swallowing, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट जो 2-3 डिफरेंशियल्स हैं आप उनके नो बताने हैं कि देयर इज नो बाउल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, देयर इज नो सेंसिटिव डिस्टर्बेंस, ठीक है, देयर इज नो सिम्पटम बैकएक, ठीक है। तो आपने इस तरह बता देना है, ठीक। तो फिर आपने बता देना है कि ड्यूरिंग स्टे पेशेंट हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड इन द फार्मेसी, जो टेस्ट आपके वो बता देना है, और फाइनली आप बता देना है कि पेशेंट करंटली पेशेंट इज डिजीज इज स्टैटिक एंड देयर इज नो ग्रॉस प्रोग्रेशन और रिग्रेशन ऑफ डिजीज़, ठीक। तो इस तरह आपने एक समराइज करना है। आपकी समरी जो है ना 5 से 6 लाइनें होनी चाहिए, उसमें पर्टिनेंट पॉजिटिव चीज़ें आपकी, पर्टिनेंट पॉजिटिव, पर्टिनेंट नेगेटिव और करंट स्टेटस ऑफ पेशेंट, ये आपका वहाँ पर डिपिक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छी आपकी हिस्ट्री थी, इसको इन पॉइंट को आप ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर।